wabarakatuh. My name is Muhammad Zaid. I study in Madrasa Ta'aleemul Quran. Respected Chief Guest Haji Salman Sahab, respected Principal Al-Haj Deen Muhammad Mansoor Puri Sahab, all teachers, parents and my dear friends. As you all know that today we have gathered here to celebrate the 76th Independence Day of our country. First of all, I heartily congratulate you all on Independence Day. 15th August is the national festival of India. After fighting the freedom struggle till the year 1857 to 1947, the country of India was freed from the British rule on 15th August in the year 1947 and became an independent nation. Since then, Indians celebrated this day as Independence Day with great pomp and gaiety. Let's go down and salute those people who achieved success in life. How fortunate are those people whose blood have been useful for India. In fact, due to lack of complete justice in historiography, the contribution of Muslims was not properly known. Sayyid Shahnawaz Ahmad Qadri and Krishna Kalki have written a similar book named Lahu Bolta Hai, in which the bravery of the Muslim characters of Jang-e-Azadi is hidden. Probably for the first time, the accounts of how many Muslims were hanged, how many were martyred, how many were punished with black water, how many were arrested in the freedom struggle. He has also given the names of these Muslim characters in the book. We know only a few leaders who participated in the freedom struggle, but Qadri Sahab has presented a long list of these people and has put the story of partition in proper perspective. Because people often get away by blaming Iqbal and Jinnah for this partition. The historical circumstances of the formation of the Muslim League have also been mentioned in the book, and internal politics regarding Muslims within the Congress has also been described. The war of 1857 was fought by Hindus and Muslims together, and 1 lakh Muslims were killed in that war. Maulanas were hanged on all the trees that were on the side of the road between Kanpur and Farrukhabad. Similarly, ulamas were hanged on all the trees from Chandni Chowk to Khaybar in Delhi. 14,000 ulamas were given death sentences. Ulamas were stripped naked and burnt alive in the ground between Jama Masjid and Red Fort. Qadri Sahab wrote that 75% of those who were hanged and those people who were punished with black water were Muslims. Not only this, these Muslims are fighting against the British since the time of Hyder Ali and Tipu Sultan. Many Muslims were publicly from 500 to 900 ashes. I lie that was spread among the public that Iqbal was an advocate of two nation theory while he wrote the song Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. Public present in the parliament sang this song in the chorus on the day we got independence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ये बच्चा था इंग्लिश में तारीख़ आज़ादी बता रहा था आप लोगों को कि टीपू सुल्तान और कौन कौन लोग इस आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं। एक नाम है अशफाकुल्ला ख़ान, जो शाहजहानपुर की सरज़मीन पर जिसने जन्म लिया और काकोरी कांड के नाम से मशहूर हुआ है। हम लोग जाने हैं अशफाकुल्ला ख़ान ने एक ट्रेन लूटी थी अंग्रेज़ों की, फिर वहाँ से दिल्ली में चले आए। अपनों का क्या बात है, अपनों की, और अपनों ने ही मखबरी करके उनको गिरफ्तार करवाया। आखिरकार अंग्रेजी गवर्नमेंट ने फांसी की सजा सुना दी, और जब उन्हें लटकाया ना गया ना, हम ये बताना चाहते हैं हमारे जियालों का क्या हाल था जब वो फांसी के फंदे पर लटकाए जा रहे थे। तो पूछती है क्या साजिश है, तो उसने एक शेर पढ़ा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कोई और होता तो कहते मुझे माफ कर दो, लेकिन नहीं, हमें मुल्क को आजाद कराना था।
जो मदरसा है ना हाजी सलमान साहब, अब नौजवान है ना, आपकी लंबाई भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, आपके बालों का अंदाज भी निराला है, आप बहुत अच्छे हैं, आप जवान हैं ना। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समाज में रहते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। हम लोग मदरसों में हमें तो मालूम है कि हमने कितना लहू दिया है इस मुल्क को। इसके मिट्टी के जर्रे जर्रे को अगर निचोड़ो ना तो आज भी हमारा खून अमानत के तौर पर यह मिट्टी हमें वापस कर देगी। त्रिपुर पर शामली के मैदान पे जाइए, जब हजरत नानोतवी हाफिज दामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैहि अंग्रेजों से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते हाफिज दामिन शहीद हो जाते हैं, हजरत नानोतवी बच जाते हैं और देवबंद चले जाते हैं। हिम्मत नहीं हारी है, आखिर सांस तक इस लड़ाई को लड़ा है हमने। अगर कोई ये कहता है हमने हमारा इस मुल्क पर कोई हक नहीं तो गलत कहता है। ये मदरसे उन्हें समझाने के लिए खोले गए हैं, बताने के लिए खोले गए हैं। हमारी कुर्बानियों को देखना चाहते हो, सर्टिफिकेट मांगते हैं आप, सर्टिफिकेट मांगना है तो आओ, हाफिज जमीन शहीद की कब्र पर जाकर बैठो तो जरा, बताएगा उनका खून के हमारी कुर्बानियां कितनी है। आओ उस माल्टा की कोठरी में चलो जहां मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को कैद किया गया था, हैं कैद किया गया था। मुझे पूछो, वक्त नहीं है, असल में बहुत है। मैं ये भी बता दूं, आज से 14 साल पहले शायद इदारा कायम हुआ था ना, 14 साल हो गए और हाजी दीन मोहम्मद साहब यहाँ नहीं है। महसूस हो रहा है हाजी जी नहीं है यहाँ, वो होते तो कुछ और ही बात होती। लेकिन उनके बेटे हजरत मौलाना आबिद हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। उससे पहले हम हाजी अरशद साहब जो बड़े बेटे हैं, जिनका माली ताउन कोशिश शाना बचाना चलना इस इदारे के लिए ज़रूरी था, उन्होंने पूरा किया। अब मैं बगैर किसी ताख़ीर के उनके बड़े बेटे हाजी अरशद साहब से दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं कारी अहरार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस बाबरकत महफिल में बोलने का मौका दिया। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख एक अजीम तारीख है और मैं इल्तिजा करना चाहता हूँ कि जितने भी नौजवान और पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, उनको चाहिए कि हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ें ताकि उनके अंदर ये शऊर पैदा हो कि हमारी क्या कुर्बानियाँ इस देश के लिए रही हैं और अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो कि हमारी क्या जिम्मेदारियां इस देश के लिए हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान एक खूबसूरत बगीचे की तरह है, एक ऐसा बगीचा जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के फूल हैं और यही मुख्तलिफ तरह के फूल हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन करिए, सोच के चलिए, अगर एक बगीचा जिसके अंदर सारे फूल एक तरह के हो, एक ही मालिक के हो, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा या एक ऐसा बगीचा जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के फूल हों, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा? यकीनन एक ऐसा बगीचा जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के फूल होंगे वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और यही मेरे हिंदुस्तान की पहचान है कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग, अलग अलग वेशभूषाओं वाले लोग
अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और हिंदुस्तान को बनाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की एक तारीख है, हिंदुस्तान की तारीख एक बहुत अजीम तारीख है, हजारों साल पुरानी तारीख है। मैंने तारीख का मुताला किया, हिंदू घाटी सभ्यता से लेकर अफगान और तुर्क तक जो भी हिंदुस्तान के अंदर आया वो हिंदुस्तान में समा गया। सबसे पहले आर्यंस आए, आर्यंस के बाद ब्राह्मणिज्म का उदय हुआ, ब्राह्मणिज्म के बाद बौद्धिज्म आया, बौद्धिज्म के बाद जैनिज्म आया और जैनिज्म के बाद मुगल और तुर्क आए। गर्ज ये कि जो भी हिंदुस्तान में आता चला गया, हिंदुस्तान ने बाहें खोलकर उसको अपने अंदर समाता चला गया। दोस्तों, ये हमारा हिंदुस्तान है। तो आप इस बात को तय करिए कि आज के हुक्मरान ये कैसे तय करेंगे कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसको रहना है और किसको नहीं रहना है। जब हिंदुस्तान की संस्कृति ने आज तक किसी को अपने अंदर अपने आगोश में लेने से मना नहीं किया, तो आज के हुक्मरान ये कैसे तय कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। दोस्तों, आज जो हम नफरत का माहौल देख रहे हैं, ये माहौल कभी नहीं था। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको पुरानी तारीख की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूं कि मुगलों के शासन में मुगलों के जो सबसे मुअत्तर सिपह सालार थे उनका नाम राजा मान सिंह था। औरंगजेब के जो सबसे मुअत्तर सिपह सालार थे और फौज के कमांडर थे उनका नाम राजा जय सिंह था। दोस्तों, शिवाजी की आर्मी में आपको जानकर ताज्जुब होगा, शिवाजी की आर्मी में 60,000 मुसलमान थे। जब शिवाजी के लिए मंदिर बनवाया गया और उनको उस मंदिर पर ले जाया गया तो उन्होंने मंदिर देखकर ये कहा कि आपने मंदिर बनवा दिया, बड़े खुशी की बात है। क्या आपने मस्जिद भी बनवाई जिसके अंदर मेरे 60,000 मुसलमान सैनिक नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की खूबसूरत थी। औरंगजेब ने अपने सबसे मुअत्तर सिपह सालार राजा सिंह को मार्का आराई के लिए शिवाजी के खिलाफ भेजा था, यानी कि हिंदू शासक के खिलाफ लड़ रहा था। वहां पर कम्युनल एंगल नहीं था, वहां पर सिंहासन की लड़ाई थी, गद्दी की लड़ाई थी। तो जो नफरत आज इस हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिल रही, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, ये नफरत कभी भी हिंदुस्तान को देखने को नहीं मिली। मुगल और तुर्क के आने के बाद 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आई। चूंकि हिंदुस्तान अंग्रेज जो थे वो बहुत ही शातिर दिमाग के आदमी थे और उन्होंने हिंदुस्तान में चली आ रही हजारों साल पुरानी जो सामाजिक बुराई थी उसको समझा और एक पॉलिसी बनाई डिवाइड एंड रूल की, जिसको बोलते हैं बांटो और शासन करो। उन्होंने ब्राह्मण को शूद्र से लड़वाया, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया, आर्यन को द्रविडियन से लड़वाया, ऊंची जात को नीची जात से लड़वाया, शिया को सुन्नी से लड़वाया और 190 साल तक एक छत्र हिंदुस्तान की सरजमी पर राज किया। वो काले गोरे अंग्रेज थे और दोस्तों, आज जो हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये काले अंग्रेज हैं। मैं इनको काले अंग्रेज का खिताब देता हूं। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख हमें समझने की गलती करते हैं कि सबसे पहला विद्रोह हिंदुस्तान में 1857 ईस्वी में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख सबसे पहले हिंदुस्तान का जो विद्रोह हुआ आजाद कराने के लिए वो 1750 ईस्वी में सिराजुद्दौला के नाना ने किया, जिसके नतीजे में सिराजुद्दौला से अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसको प्लासी का युद्ध बोलते हैं। और उस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को, क्योंकि उसका मीर जाफर मिट चुका था, उसका जो सबसे बड़ा सिपह सालार था, अंग्रेजों ने वहां पर भी मीर जाफर को कुछ पैसों का लालच देके, कुछ ओहदों का लालच देके मीर जाफर को बरगला लिया और सिराजुद्दौला के साम्राज्य का अंत हो गया। उसी दौरान टीपू सुल्तान ने मैसूर के अंदर मार्का आराई करते हुए शहादत हासिल की और टीपू सुल्तान की लाश पर अंग्रेज ने खड़े होकर कहा था कि आज का यह दिन है कि हमारी हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर मुकम्मल हो गई है। हजरत बेगम महल ने कुर्बानियां दी। ये दोस्तों हमारे बड़ों की आबो अजदा की, हमारे बड़ों की कुर्बानियां हैं इस देश को बनाने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा विद्रोह 1857 ईस्वी में शामली के अंदर हुआ, जिसमें एक तरफ उलमाए किराम थे। किताबों की बात, तारीखी बात मैं आपको बता रहा हूं और सारी बात फैक्ट के साथ बता रहा हूं। 1857 के अंदर शामली के विद्रोह में एक तरफ उलमाए किराम थे, जिस आर्मी को हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब, मौलाना कासिम नानोतवी साहब, मौलाना राशिद अहमद गंगोही साहब लीड कर रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। जबरदस्त विद्रोह हुआ, जिसके नतीजे में अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई कि अगर हमें अपनी हुकूमत यहाँ बचानी है तो मुसलमानों का और उलमाए किराम का खात्मा करना पड़ेगा। जिसके नतीजे में
तकरीबन 2 लाख मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, शहीद किया गया। किताबों के अंदर लिखा है कि 51,000 तो उलमा इकराम थे, 33,000 उलमा इकराम को जामा मस्जिद से लेकर लाल किले तक शहीद करके तख्तों पर टांग दी गया। दोस्तों ये हमारी कुर्बानी है इस देश को बनाने के लिए। 191 उलमा इकराम को मेरठ के अंदर शहीद किया गया। तीसरा सबसे बड़ा विद्रोह 1921 से 1947 के बीच में हुआ, जिसके अंदर काकोरी की ट्रेन लूटी गई और अंग्रेजों के हाथ अशफाकुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल लगे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां जो एक मुसलमान थे, इस देश के लिए खुशी खुशी सूली पर चढ़ गए। ये दोस्तों हमारी तारीख है जो हमें जानना पड़ेगा। और उसी दौरान कुछ और भी जवान स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई। यहाँ पर एक बात हमें और ध्यान लेनी चाहिए कि जब भगत सिंह जेल में थे और उनका ट्रायल चल रहा था, तो उनका केस लड़ने वाले एक मुस्लिम लॉयर थे जिनका नाम था आसफ अली। ये हमारी कुर्बानियां हैं दोस्तों। जब भगत सिंह को शहीद कर दिया गया तो चंद्रशेखर आजाद ने एक नारा दिया, एक दोहा कहा, अभी भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं है पानी है, अभी भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं है पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। उसी दौरान मौलाना महमूद हसन देवबंदी साहब, जिनको शेखुल हिंद का खिताब है, जो दारुल उलूम देवबंद के पहले स्टूडेंट थे, वहां के पहले तालिब इल्म भी थे, रेशमी तहरीक की इब्तिदा की और फतवा दिया मुसलमानों को कि आपके लिए लाजमी है अंग्रेजों से विद्रोह करना, अंग्रेजों से लड़ना, जिसके नतीजे में उनको 4 साल तक माल्टा तालिबानी की जेल हुई और जबरदस्त उनकी असलियत पहुंची गई। उसी दौरान दोस्तों एक और स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था सावरकर। ये बहुत हिस्टोरिकल बात है, आप इसको ज़हन में बिठा लीजिएगा। सावरकर पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो आरएसएस के मेंबर थे, उनको भी जेल भेजा गया। वो जेल की आजादियों को बर्दाश्त न कर पाए, जेल की अजियतों को बर्दाश्त न कर पाए और अंग्रेजों के लिए उन्होंने 3 मर्सी पिटीशन, 3 याचिकाएं लिखी कि आप मुझे जेल से रिहा कर दीजिए, मैं कभी आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा, गांधीयन मूवमेंट्स को, गांधी के आंदोलनों को दबाने की कोशिश करूंगा और मुस्लिम लीग को सपोर्ट करूंगा, 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करूंगा। गर्ज ये कि देश की आजादी जब होगी कि मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाए। ये सावरकर थे और इन्हीं की टीम में से निकला हुआ एक आदमी था जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नाथूराम गोडसे ही वो आदमी था जिसने हिंदुस्तान के महात्मा, हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन किया था, गोली मारी थी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हथियारा नाथूराम गोडसे था। ये जानना पड़ेगा कि उनमें और हमारी आइडियोलॉजी में, उनकी और हमारी विचारधाराओं में क्या फर्क है। हमारे उस वक्त में बहुत सारे उलमाए किराम थे जो गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट कर रहे थे। नाम इतने सारे हैं कि याद रखना मुश्किल है, फिर भी मैं आपको गिना देता हूँ। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, जिनको भी माल्टा की जेल में डाला गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, अल्लामा मशरिकी साहब, अब्दुल गफ्फार खान, हजरत मोहानी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हजरत मोहानी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, जहां एक तरफ हमारे उलमाए इकराम, हमारे काबिलीन, हमारे आबो अजदा इस देश को बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ आरएसएस और उसकी आइडियोलॉजी देश की विभाजन की बात कर रही थी, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, देश को बांटने का काम कर रहे थे। आज वो किस हद पर हमारे से कस्में खिलवाते हैं इस बात की कि हम इस देश के सच्चे भक्त नहीं हैं। जितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, शायद से किसी और ने इस देश के लिए इतनी कुर्बानियां नहीं दी हैं। खैर, इसी के साथ में एक शेर वतन परस्ती के ऊपर कहना चाहूंगा। ए वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। रात इंदौरी साहब का बड़ा फेमस शेर है, आपने सुना भी होगा। ए वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। उसी दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े समझदार और एक विद्वान आदमी हुए, जो नीची जाति से बिलोंग करते थे, एससी एसटी कम्युनिटी कैसे बिलोंग करते थे, और सामाजिक जो परेशानी और बीमारियां सदियों से चली आ रही,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने इस देश के संविधान की रचना करी, वो बड़े सेक्युलर माइंडेड आदमी थे और उन्होंने संविधान जो लिखा वो इक्वालिटी अमंग ऑल, सभी के अंदर समानता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैनिज्म, जितने भी धर्म हैं वो सब के सब बराबर हैं, हम सब के सब भाई हैं। इसी बेसिस पर संविधान लिखा गया, जिस संविधान की बुनियाद को आज हिलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर एक इमारत की बुनियाद को हिलाया जाएगा, क्या वो इमारत टिक पाएगी? तो इस हिंदुस्तान का जो संविधान है, ये बुनियाद है उस इमारत की जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। आप 40 करोड़ आबादी को इग्नोर करके इस देश को आगे लेके नहीं जा सकते। पाकिस्तान ने हमारे बराबर प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश था, सभी लोग हम मिलकर, कोई किसी चीज में स्पेशलाइज्ड है, कोई किसी चीज में माहिर है, कोई किसी चीज में माहिर है। इसी चीज में 140 करोड़ आबादी ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है दोस्तों, जो पाकिस्तान अब तक नहीं कर पाया। तो यही चीज है कि अगर हमें इस हिंदुस्तान को कामयाब बनाना है तो हमें सब लोगों को प्यार और मोहब्बत से चलना पड़ेगा। और मैं आप सबसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। पिछले साल मेरी जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद साहब से मुलाकात हुई देवबंद के अंदर। उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों में, यहाँ पर पीछे राइड भी हुए थे दंगे, तो उसको लेकर भी बहुत चर्चा हुई, बहुत तफसीली बात हुई। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप लोगों में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि आप अपने हिंदू भाइयों से वार्तालाप नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते, बातचीत नहीं करते। कि आप उनको अपने यहाँ बुलाया करिए, उनके यहाँ दिवाली पर जाया करिए, अपने बारे में उनको बताइए। जैसा वो मीडिया में सुन रहे हैं, जैसा ट्रेंड चल रहा है, जैसा प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसी हिसाब से वो हम सबको समझते जा रहे हैं। तो सबसे मेन चीज है कि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है, एक दूसरे से हम लोग बातचीत नहीं करते। उनको ईद पर अपने यहाँ बुलाइए, उनके यहाँ जाइए। मेरे बहुत सारे दोस्त, मैं स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, मेरे बहुत सारे दोस्त नॉन मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम दोस्त थे, मैं उनके साथ बैठता था, बातें करता था, खाते थे, पीते थे, अलग अलग चीजों में हमारी बहस हुआ करती थी, पढ़ाई को लेकर के। लेकिन कभी भी मैंने उनके अंदर वो नफरत वाली बात नहीं देखी जो पिछले 8 या 9 सालों में देखी है। कोई भी आदमी ट्रेन में चलते हुए किसी भी मुसलमान की दाढ़ी और टोपी देखकर गोली मार देता है, शक की बुनियाद पर जिंदा जला दिया जाता है। आज पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है? नफरत के ये नतीजे होते हैं। मैं बहुत खुल करके नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप सब लोग दानिश्वर और समझदार लोग हैं। सारा हिंदुस्तान झुलस रहा है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह है कि नफरत को फैलाया जा रहा है। आज वक्त है कि हमें मोहब्बत को फैलाना है और आज हम अहद लेते हैं इंशाअल्लाह ताला अपनी जबान से कभी किसी धर्म के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलेंगे, प्यार और मोहब्बत को प्रमोट करेंगे, हिंदुओं को, अपने हिंदू भाइयों को अपने यहाँ बुलाएंगे और प्यार मोहब्बत से इस देश को आगे लेके जाएंगे। दोस्तों, एक आखिरी शायरी के साथ, क्योंकि मेरा गला भी सूख गया बोलते बोलते, अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आप सब लोग माशाल्लाह समझदार और दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं। मेरा इशारा किसकी तरफ है आप समझ जाएंगे। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, जमीन हिंद के हर जर्रे को वो नापाक कर देगा। गुजारिश है, सुनिएगा सुनिएगा, गुजारिश है मेरी इससे हुकूमत छीन लेना, गुजारिश है मेरी इससे हुकूमत छीन लेना, वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ खाक कर देगा। दोस्तों, मेरे साथ आप सब मिलकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा दीजिए। इतनी जोर से नारा हो कि पूरे हिंदुस्तान में आवाज जानी चाहिए कि मुसलमान बहुत बड़ा देश परस्त भी होता है और कौम परस्त भी होता है। इनकलाब, 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 हिंदुस्तान, 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 हम सब, हम सब, हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।